آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کروائیں گے جو دنیا کے پہلے 10 امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے، جس کو عرب کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے 8 دہائیاں پہلے یہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ شہر دبئی کی طرح جدید ہو چکا ہے، جس جگہ ہر سال کروڑوں لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ایک انتہائی خوبصورت اور جدید شہر الریاض کی۔ دنیا کی سب سے خطرناک جگہ بھی ریاض میں موجود ہے۔ یہ نہ صرف ملک کا دارالحکومت ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور حیرت انگیز ترقی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم آپ کو ریاض شہر کی تاریخ، کلچر، لوگوں کے رہن سہن، ریاض کے لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں اور ان لوگوں کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، الریاض سعودی عرب کے سینٹر میں واقع شہر ہے جو سطح سمندر سے 600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ الریاض مکہ شہر سے 867، مدینہ شہر سے 827، جبکہ جدہ شہر سے 956 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ الریاض شہر ایک اہم تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاحتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 17ویں صدی تک الریاض کو حجر الیمامہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 1902 میں عبدالعزیز ال سعود نے 60 لوگوں کے ساتھ ریاض شہر پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتا تھا۔ دوستو، 1932 میں سعودی عرب کے قیام کے بعد الریاض ملک کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ 1970 تک الریاض ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ 70 کی دہائی میں تیل کی دریافت کے بعد ریاض شہر کی قسمت بدل گئی۔ آج یہ شہر جدید اور اونچی ترین عمارتوں، بہترین انفراسٹرکچر اور بڑے بڑے شاپنگ مال کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ الریاض شہر کی آبادی کی بات کریں تو 2025 میں اس جگہ کی کل آبادی 75,53,727 افراد پر مشتمل ہے۔ شہر کی آبادی کا گروتھ ریٹ 1.88% ہے۔ آبادی کے لحاظ سے الریاض سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1913 مربع کلومیٹر ہے۔ الریاض شہر دنیا کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ غیر ملکی لوگ موجود ہیں۔ اس جگہ کئی ممالک کے لوگ موجود ہیں جو روزگار کمانے کی غرض سے آتے ہیں، جن میں سب سے بڑی تعداد انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 26 لاکھ انڈین شہری، 15,45,000 پاکستانی، 9,70,000 بنگالی اس شہر میں موجود ہیں۔ الریاض ایک گنجان آباد شہر ہے۔ اس جگہ 1 کلومیٹر کے اندر تقریباً 3,948 افراد رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، الریاض شہر سعودی عرب کے 2030 ویژن کا اہم حصہ ہے۔ اس شہر میں سعودی حکومت نے اربوں ریال کے سینکڑوں منصوبے شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے الریاض شہر میں غیر ملکی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ 2030 ویژن کے تحت الریاض میں شروع ہونے والے منصوبوں کی پوری دنیا منتظر ہے۔ دوستو، اس جگہ بغیر پٹرول اور دھوئیں سے چلنے والی الیکٹرک گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں۔ 2030 میں اس جگہ بے شمار پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے، جس میں سبز ریاض، ریاض میٹرو، قدیہ میگا پروجیکٹ، کنگ سلمان پارک پروجیکٹ شامل ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے 2030 کے بعد الریاض دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی اور جدید ترین شہر بن جائے گا۔ الریاض میٹرو ایک ایسا منصوبہ ہے جو پورے شہر کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آپس میں جوڑ دے گا۔ اس میٹرو سسٹم میں 6 لائنیں اور 176 اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔ سبز ریاض پروجیکٹ ریاض شہر کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔
इस प्रोजेक्ट में इस जगह तकरीबन 75 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, यानी इस पूरे इलाके को सरसब्जो शादाब बना दिया जाएगा। किंग सलमान पार्क भी 2030 विजन में शामिल है। ये पार्क किसी अजूबे से कम नहीं होगा। किंग सलमान पार्क न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 4 गुना बड़ा होगा। सऊदी अरब के सबसे अमीर तरीन खानदान रियाज में मुकीम है, जिनके पास करोड़ों रियाल की गाड़ियां मौजूद हैं। अल रियाज शहर के शेख दुनिया के शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। सऊदी अरब दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो हासिल करने के लिए दुनिया का हर काम कर रहा है। ये मुल्क भी फहाशी और बेहयाई के उस नक्शे कदम पर चल रहा है जहां आज दुबई पहुंच चुका है। इस जगह साल 2024 में बड़े बड़े कसीनो और शराब खानों का इफ्तिताह किया गया, जो कि 2030 विजन का हिस्सा है। सऊदी हुकूमत का कहना है ये शराब खाने और कसीनो सिर्फ गैर मुल्की सियाहों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत की ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ के शराब खानों में सऊदी लोग मौजूद होते हैं, जबकि यहाँ के कसीनों में अरबी औरतें जुआ खेलती दिखाई देती हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग सैर करने के अलावा अय्याशी और फहाशी के लिए भी रियाज शहर में आते हैं। 2017 में अल रियाज शहर में पहला म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्कद करवाया गया। 2018 में इस जगह तारीख के और सऊदी अरब के पहले सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया गया। यहाँ से ही अल रियाज को आज़ाद ख्याल शहर का खिताब दिया गया। दोस्तों, अल रियाज शहर में एक मुरब्बा शक्ल का शहर भी तामीर किया जा रहा है, जो कि एक बंद डब्बे की सूरत का है। ये शहर बिल्कुल न्यूम सिटी की तर्ज का होगा। कई लोगों का कहना है कि इसे खाना काबा की शक्ल में डिजाइन किया गया। एक डब्बे में पूरे शहर को तामीर किया जा रहा है। अल रियाज आज दुनिया का जदीद तरीन शहर बन चुका है। 2025 में अल रियाज मसनूई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। अल रियाज सियाहती शहर होने के साथ साथ मुल्क का बेहतरीन इक्तसादी और सनती मरकज भी है। अल रियाज शहर में बेशुमार नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां मौजूद हैं। इन कंपनियों में 20 एशियाई ममालिक के लोग काम करते हैं। दोस्तों, इन कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की तनख्वाहें आम तौर पर 2000 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक हैं। अल रियाज शहर को नौजवानों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 55% आबादी नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है। अल रियाज के लोगों की औसत उम्र 72.5 साल है। दोस्तों, अल रियाज शहर के नाम का मतलब है खूबसूरत बाग, क्योंकि कदीम जमाने में अल रियाज अपने बड़े बड़े बागात की वजह से मशहूर था। आज भी शहर के आसपास के इलाकों में हजारों एकड़ रकबे पर खजूरों के बागात मौजूद हैं। इस्लाम से पहले रियाज और दमाम वाले हिस्से को नजद के नाम से पुकारा जाता था, जबकि मक्का, मदीना और जद्दा शहर के हिस्से को हजाज कहा जाता था। 8वीं सदी तक ये खित्ता सऊदी हुकूमत का खास मुकाम रहा है। 1818 में सल्तनत उस्मानिया ने दरिया को तबाह कर दिया, जो कि उस वक्त सऊदी रियासत का दारुल हुकूमत शहर था। 1902 में इस जगह आकर एक छोटा सा कबीला आबाद हुआ। इस वक्त इस जगह बड़े बड़े सहरा और रेत के टीले मौजूद थे। 1930 में रियाद शहर की आबादी 30,000 लोगों तक पहुंच गई। ये लोग ऊंट और भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करते थे। 1933 में इस जगह वसी पैमाने पर तेल की दरियाफ्त हुई, जिसके बाद रियाद शहर की किस्मत आसमान छूने लगी। 1950 में रियाज की आबादी 85,000 अफराद तक पहुंच गई। 1982 तक सऊदी अरब का सफारती दारुल खलाफा जद्दा सिटी था, जो बाद में अल रियाज शहर में मुंतकिल कर दिया गया। अल रियाज शहर के तालीमी निज़ाम की बात करें तो यहाँ तालीम की शरह 97.4% है। तालीम का सिस्टम आला और बेहतरीन है। रियाद शहर में कई बैनुल अक़वामी स्कूल्स और कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद अमेरिकन और यूरोपीय स्कूल्स की है। रियाद में मौजूद किंग साउद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन यूनिवर्सिटी है।
इस यूनिवर्सिटी में दुनिया के तकरीबन 17 ममालिक के तालिबात मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 70,000 सऊदी खवातीन भी तालीम हासिल कर रही हैं। आप लोगों को एक और दिलचस्प और हैरानकुन बात के बारे में आगाह कर दें कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी रियाद शहर में मौजूद है, जिसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ के करीब किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का सबसे बड़ा किताब मेला भी अल रियाद शहर में लगाया जाता है। इस किताब मेले में दुनिया के कई ममालिक के लोग शिरकत करते हैं। अरबी रियाद शहर में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी जुबान है। शहर की 75% आबादी अरबी जुबान बोलती है। उर्दू और इंग्लिश इस जगह इस्तेमाल होने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। दोस्तों, यहाँ की औरतों की बात करें तो ये किसी से भी कम नहीं है। ये औरतें लाखों रियाल अपने मेकअप और लिबास पर खर्च करती हैं। सोना पहनना और दुनिया की महंगी तरीन खुशबू लगाना इन औरतों का सबसे बड़ा शौक है। रियाद के शेखों ने 4 शादियां लाजमी की होती हैं। इस्लामी शहरों में सबसे ज्यादा तलाक की शरह भी रियाद शहर में है। इसके अलावा आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दे, अल रियाद शहर के अरबों के पास दुनिया के कई ममालिक की शोहरियत भी मौजूद है, जिनमें ज्यादातर ममालिक यूरोपी हैं। यहाँ के शेख फहाशी और अपनी रातों को रंगीन करने के लिए इन यूरोपी ममालिक का सफर करते हैं। इस जगह होने वाली शादियों की बात करें तो ये बहुत शानदार तरीके से होती हैं। अल रियाद में शादी की उम्र कम से कम 18 साल है। यहाँ के लोग लाखों रियाल हक महर की सूरत में लड़की के खानदान को देते हैं, जो इन लोगों की रवायात का हिस्सा है। निकाह इस्लामी तरीके के मुताबिक होता है। वलीमे की दावत शादी हाल में मुनाकद की जाती है। दोस्तों, अल रियाद सऊदी अरब का सियाहती शहर भी है। इस जगह सैकड़ों खूबसूरत और तारीखी मकामात मौजूद हैं। किंगडम सेंटर टावर रियाद के मशहूर और दिलकश मकामात में से एक है। किंगडम टावर की टोटल 99 मंजिलें हैं, जो कि अपने खास किस्म के डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस इमारत के ऊपर खड़े होकर पूरे शहर का नजारा किया जा सकता है। अल फैसल टावर सऊदी अरब की पहली फलक बोस और सबसे महंगी तरीन इमारत है, जिसकी गुंबद नुमा चोटी इंतहाई खूबसूरत है, जो शीशे से बनी हुई है। मस्क किला रियाद शहर के तारीखी मकामात में से एक है। ये किला सऊदी तारीख में अहम मुकाम रखता है। 1902 में शाह अब्दुल अजीज ने रियाद शहर को फतह करने के लिए इसी किले पर हमला किया। हर साल लाखों लोग इस किले की सैर करने के लिए आते हैं। अल रियाद शहर में दुनिया के मशहूर शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। दी राशिद मॉल सऊदी अरब का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें दुनिया की हर महंगी से महंगी चीज खरीदी जा सकती है। राशिद मॉल्स शॉपिंग के साथ साथ बेहतरीन तफरीही मुकाम भी है। दहरिया रियाद का सबसे कदीम इलाका है। इस जगह से आले सऊद खानदान की शुरुआत हुई। इस मकाम को भी सियाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल तारीफ रियाद का खूबसूरत इलाका है। इस इलाके में इमारतें जदीद लाइट्स की मदद से जगमगाती हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। अल बतहा सऊदी अरब की एक मशहूर मार्केट है, जिसमें सोने के जेवरात, खुशबुएं और खजूरें देखने को मिलती हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ रियाद भी इसी जगह के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है, जिसमें सऊदी अरब की तारीख से वाबस्ता हजारों साल कदीम अशिया मौजूद हैं। इस म्यूजियम में सऊदी सकाफत, तारीख और जदीद तरक्की को 8 मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाया गया। दोस्तों, जना दरिया फेस्टिवल रियाद शहर में मुनअकद होने वाला एक सकाफती त्यौहार है, जो मुसलसल 32 दिनों तक जारी रहता है। इस त्यौहार को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस फेस्टिवल में रवायती रक्स, दस्तकारी, ऊंटों और घोड़ों की रेस शामिल होती है। दोस्तों, इस जगह दुनिया का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। पूरे शहर में रोड का वसी और साफ सुथरा जाल मौजूद है।
ریاض کے ٹریفک قوانین بہت سخت ہیں، ذرا سی غلطی پر 1000 سے 2000 ریال کا جرمانہ کر دیا جاتا ہے، جس کا شکار بڑی تعداد میں غیر ملکی ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں۔ شہر میں میٹرو اور ریلوے کا سسٹم بھی موجود ہے۔ ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہے۔ یہ ایئرپورٹ ایک انتہائی خوبصورت اور جدید ہے۔ دوستو، ہر سال کروڑوں لوگ الریاض ایئرپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ کسی دور کا ایک چھوٹا سا گاؤں آج دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی شہروں میں سے ایک ہے۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق الریاض شہر میں آنے والے سیاحوں کی کل تعداد 1 کروڑ 19 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ شہر کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان سے ریاض ایئرپورٹ تک ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی قیمت 1,20,000 روپے ہے، جبکہ الریاض شہر میں جانے کے لیے پاکستانی سعودی عرب کا سیاحتی ویزا لگوا سکتے ہیں، جس کی قیمت 50 سے 70,000 روپے تک ہے۔ اس وزٹ ویزے کی مدت 90 دن تک ہوتی ہے۔ انتظامی لحاظ سے الریاض شہر کو 17 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ شہر کا سربراہ گورنر کہلاتا ہے۔ اس شہر کے موجودہ گورنر کا نام شہزادہ فیصل بن بندر ال سعود ہے، جبکہ ریاض شہر کے میئر کا نام فیصل بن عبدالعزیز ہے۔ دوستو، ریاض شہر کے چاروں اطراف ریگستان اور صحرا موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عرب کے وسطی حصوں میں سب سے زیادہ تیز سورج اسی جگہ پڑتا ہے۔ الریاض شہر میں موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کا ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں الریاض شہر کے عربی طائف اور ابہا شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فٹ بال الریاض شہر کے لوگوں کا پسندیدہ اور مقبول ترین کھیل ہے، جو اس جگہ سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ الریاض شہر میں بڑے بڑے فٹ بال گراؤنڈ اور کلب موجود ہیں۔ پورے عرب کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم الریاض شہر میں موجود ہے، جس میں تقریباً 80,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ باسکٹ بال، والی بال، اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس ملک کے دوسرے اہم اور پسندیدہ کھیل ہیں۔ دوستو، الریاض شہر کے لوگ اونٹ اور گھوڑے بہت شوق سے پالتے ہیں۔ اس جگہ پر موجود عربی نسل کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن کی قیمت لاکھوں ریال ہوتی ہے۔ الریاض میں اونٹوں کی بہت بڑی منڈی بھی لگائی جاتی ہے، جس میں پورے عرب سے لوگ اونٹ بیچنے اور خریدنے کے لیے آتے ہیں۔